Now, there is a breaking news coming in right now. It seems that these Gen Z supporters and protesters now have infighting erupting within themselves. There was a clash of two different groups, multiple groups outside the army headquarters. Remember, there were talks underway in the army headquarters between the Gen Z groups and the army chief, and a brawl erupted amongst these youth outside the Nepal army headquarters. Now, the Gen Z factions are emerging right now. Different factions with different aspirations and demands, and they're fighting amongst themselves outside the army headquarters. Now, this has led to a chaos, high drama outside the headquarters of the Nepal army. They have turned against each other. They're fighting amongst each other. Different groups have different aspirations, agendas. The visuals that you see on your screen right now, shocking as they clash amongst themselves. After a revolution that successfully brought down the Prime Minister of that country, it seems the protesters themselves are not able to find common ground as far as talks or the future ahead is concerned. And that's why we see groups and factions fighting amongst themselves, as today they were brought in to talk to the Nepalese army chief. So these visuals that you see are from outside the Nepal army headquarters, where on the screen you can see youth fighting amongst themselves, hitting each other. One man being hit by a few while others try to come and save him. Clearly, now the situation is turning volatile within the Gen Z protesters themselves. This is a result of different aspirations between these different groups of different factions. Joining us now is India Today's Pankaj Das. Pankaj, tell us what is happening outside the army headquarters. These are youth who were part of the protest, but it seems now they cannot stand each other. अपने ही आपस में इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जो जेन जी के उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके आपस में लड़ाई हो गई, क्योंकि किसके नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट बने उसको लेकर अभी तक इनके कोई सहमति नहीं बन पाई है। और जब अलग अलग नाम आ रहे हैं तो उसमें विवाद होने के बाद वहाँ मारपीट तक की नौबत आ गई है। बताया गया है कि कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। वहाँ पे सेना स्थिति को संभालने में लगी हुई है। वहाँ पे अभी तक किसी एक के नाम पर सहमति नहीं हुई थी। जो सुशीला कार्की का नाम चल रहा था, फिर अचानक से कुलमान घिसिंग का नाम, एक जेन जी ग्रुप की तरफ से उनका नाम सामने आने के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। साथ में ये भी बताएं कि किस तरीके से पंकज, पहले भी जब ये बातचीत का दौर चला तो अलग अलग फैक्शंस, अलग अलग ग्रुप वहां पर पहुंचे थे बात करने के लिए, तो क्या हुआ उस बातचीत के दौरान भी? नहीं, उस बातचीत में कोई सहमति नहीं हो पाई। आर्मी की तरफ से जो अलग अलग ऑफिसर डिप्यूट है, इनके जो जेएनजी ग्रुप है, उनसे बातचीत करने के लिए, तो वो सबकी बातें सुन रहे हैं, और आर्मी का सिर्फ ये कहना है कि आप लोग आपस में सहमति करके आइए। पहले आपस में ही आप लोगों का विवाद है कि किसके नाम पर सहमति बने, किसको आगे ले जाया जाए। तो आपस में सहमति करने की बात कहते हुए आर्मी ने इन सभी जो जेन जी के रिप्रेजेंटेटिव है उनको आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर गेट के बाहर उनको कर दिया था। उसके बाद भीतर में जो सुशीला कार्की और दुर्गा परसाई, इन सब के साथ कई घंटे तक उनकी बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत का भी कोई खास नतीजा अभी तक निकल के सामने नहीं आ पाया है। Right, do stay on with us, Pankaj, as we bring these visuals to our viewers. This is from outside the Nepal army headquarters, and this is extremely troubling as we see the protesters who till day before yesterday were raising their voice in unison against the government are now turning against each other. There are aspirations, there are demands, there are wants that are differing amongst the factions that have cropped up, and now it seems that they have resorted to fighting amongst each other, and it has actually resulted in a physical fight between these different factions. And continuing to stay with us is Pankaj Das from Kathmandu. Pankaj, जो
कोशिश की गई थी जेंजी की तरफ से, वो एक डिस्कॉर्ड पर एक ओपिनियन पोल चला करके एक नाम सामने लाने की कोशिश की गई थी। उसमें हमने देखा था कि सुशीला कर्की का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जो बातचीत हुई है उसमें एक और चेहरा जो सामने आया, उसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि वो राजशाही से जुड़ा हुआ है। क्या ये भी वजह रही है कि इनके बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई? भी आर्मी की तरफ से जिन दुर्गा परसाई को बुलाया गया है वो यहाँ पे प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट के लिए जाने जाते हैं। उनके लीडरशिप में पिछले बार जो काठमांडू के कलंकी में बहुत बड़ा एक घटना हो गया था जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी, तो उसके लीडर को आर्मी चीफ ने वहां पर बुला के उनसे जब बातचीत की, इस बात की खबर जैसे ही बाहर जो जेंजी प्रोटेस्टर है उनको लगी, तो इस बात का बहुत ज्यादा विरोध, आर्मी का ही विरोध होने लगा कि क्यों आर्मी इतने ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रही है। उन्होंने यहाँ तक डिमांड कर डाली कि ये जो बातचीत हो रही है अंतरिम गवर्नमेंट को लेकर, ये बातचीत अब आर्मी हेडक्वार्टर में नहीं होनी चाहिए, ये बातचीत राष्ट्रपति भवन में करना चाहिए। भले ही राष्ट्रपति भवन पूरी तरीके से इस समय जलकर वो बहुत बुरी हालत में है, लेकिन उनका कहना है कि वहीं खुले मैदान में हो, और लोगों का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति को सामने लाया जाए। जैसे ये बात आगे हुई राष्ट्रपति को सामने लाने की, तब राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान 4-5 लाइनों का एक बयान जारी किया गया है कि इस सारे सहमति का प्रयास किया जा रहा है। Right. Do stay on with us, Pankaj. Pankaj just referred to a statement that was issued by the President of Nepal just a while back, and it was referring to the fact that there is a process on and that the President himself is supervising it to make an interim government, and he was also making an appeal to the people to stay calm, the Gen Z protesters to stay calm and let the process move forward. But what we are seeing now are visuals like these, which you can see on your screens from the Nepal Army headquarters, where the factions are fighting amongst themselves, and we can see people turning on each other. Pankaj continues to be with us. Pankaj, चिंता की बात है ये हम जानते हैं कि एक तरह से हेडलेस रेवोल्यूशन था, कोई एक शख्स नहीं था, एक कोई लीडर नहीं था जो इसे आगे लेकर जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ चेहरे थे जिनका नाम बार बार आगे आ रहा था, जिन्हें कहा जा रहा था कि ये पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं। बाद में वो चेहरे अचानक से गायब हो गए हैं और उनको बातचीत के लिए आगे आने का मौका नहीं मिला है। क्या जेन ज़ी चाहता है कि वो भी सामने आए? जी देखिए, 2 लोगों के नाम जो सबसे पहले लिए गए थे, जिनमें एक बालन शाह का नाम था जो काठमांडू के मेयर हैं, दूसरे रवि लामिछाने का, ये इन दोनों ने तो खुद ही स्टेटमेंट जारी करके ये दोनों बैक हो गए हैं। और इसमें अभी तक इनके फिर से इसमें इनका कहना है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट में हम नहीं रहेंगे, जब प्रेस सिलेक्शन होगा तो हम प्रेस सिलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो इसलिए अब इनके फिर से दोबारा आने, हालांकि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इनको बनना चाहिए, जो रवि के सपोर्टर्स हैं वो रवि के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन कई से लोग हैं जो सुशीला कार्की, जिनका नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि सुशीला कार्की न बने, कोई और बने। इसीलिए कुलमान घिसिंग का नाम फिर से सामने आए। तो बहुत ही स्थिति अजीबो गरीब है, यहाँ पर किसी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है इस समय। और आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जो जिस तरह से हंगामा चल रहा है और युवाओं के तादाद लगातार यहाँ बढ़ जा रही है, तो इससे स्थिति के बिगड़ने की हालात है। Right. Thank you, Pankaj, for all those details. So, no one name is garnering enough support for everyone to agree on, and we are seeing visuals of Gen Z protesters fighting amongst themselves in Nepal.